अभी ठीक है। ऑडियो इज फाइन, स्क्रीन नहीं है। हाँ, स्क्रीन भी आ गई। ऑल गुड, ऑल गुड। ठीक है। प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक ऑलरेडी। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास टाइप्स है। सो व्हाट आर द टू क्वेश्चंस जो इसमें कवर हो रहे हैं? दैट इज molecular subtyping of breast cancer and its implication on prognosis, and how does transcriptional profiling of breast cancer help in prognostication and decision making. And few more questions will be covered, like oncotype DX and Rxponder. So this will also be covered in this topic. So what is the molecular testing? So molecular testing इसमें ऐसे रहता है कि started from 1977 ERPR शुरू हुआ था। उसके बाद 2000 में molecular portraits आए, HER2 testing 1998 में आए, फिर prognostic type DX, oncotype DX, ये सब 2007 में ही आ गया था। बट इनकी स्टडीज जो Rxponder है एंड टेलरेक्स ट्रायल है, ये 2013 अराउंड आया। Circulating tumor cells 2004 and next generation sequencing 2013, hereditary breast cancer 2013, and followed by present era there is PI3CA, AKT, PEAK10 testing. So molecular testing in a breast cancer itself can be a new recent advanced question. So इसलिए ये पूरा मैं टाइमलाइन बता रही हूँ। तो ERPR टेस्टिंग, HER2 टेस्टिंग NGS 2013 में ही आ गया था, और अभी हम CDK6 इनहिबिटर्स और वो सब भी दे रहे हैं, तो वो भी शायद ESR जो टेस्टिंग है उसके अराउंड आया है। So breast cancer before molecular testing, इसकी classification was like in situ and invasive infiltrative carcinoma. So ductal carcinoma and lobular carcinoma. Ductal carcinoma has comedo, cribriform, micropapillary, papillary, solid. These were the histopathological variants. इसमें हम comedo को बेकार मानते थे। ठीक है। Lobular is the low histological variation. फिर invasive में tubular, ductal, invasive lobular, infiltrating ductal carcinoma जो most common है। इसको फिर से according to ये न्यूक्लियर अपना जो नॉटिंगम क्लासिफिकेशन रहता है उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, ये ब्लूम रिचर्डसन के हिसाब से। न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, ट्यूबुलर मॉर्फिज्म, माइटोटिक रेट, ये सब डिवाइड करता है। उसके हिसाब से वी विल गिव सीवियरिटी एंड ग्रेड ऑफ द ट्यूमर। And mucinous medullary infiltrating. So till this classification, molecule pictures were not there, only histological classification was there. Then in current era, we are doing molecular classification, which is mandatory for all. So IHC itself is a question in the breast cancer. So ERPR, HER2 and PDL1 in metastatic triple negative breast cancer, this is according to NCCN and ESCO and ESMO. These all should be done for all breast cancer, is the must do test. ERPR, HER2, and in optional is Ki67. Why it is optional, I will discuss in the further slides. One of the most strived currently measure of this biomarkers, and they are integral part in the decision making. तो हमारा क्वेश्चन है, what are the prognostic and predictive markers and what are their implications? So core biopsy should be done. Optimal core biopsy 5 to 6 to 24 hours of fixation. Neutral buffer formalin 10% हमको करना है। मेन जो प्रॉब्लम है, हमको लेस देन 30 मिनट्स में पेशेंट को फॉर्मेलिन में डाल देना।
पर अगर हम लेस देन 30 मिनट्स में फॉर्मेलिन में नहीं डाल रहे हैं तो उससे मार्कर्स का रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो ये सर्जन्स को बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पैथोलॉजिस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग इफ वी आर नॉट फिक्सिंग अपना स्पेसिमेन ऑन टाइम। तो फिर उनको गाली देने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ER एस्ट्रोजन क्या होगा? मोस्ट कॉमनली यूज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेडिक्टिव मार्कर। ठीक है। मेजर क्लासिफायर इज द ब्रेस्ट कैंसर, ER PR नेगेटिव, positive and different have clinical, molecular, epidemiological risk factor profile. ER positive अच्छा होगा, negative बेकार होगा। ISC is recommended for the assessment of ER positive patient as well as PR positive. तो हम ER staining कैसे कैलकुलेट करते हैं? That is modified H score और Aldred score. Aldred score is more famous than H score. इसका जो 2 scores रहता है 0 और 2। तो इसकी स्टेजिंग कैसे होती है? ER स्टेनिंग IHC से वैलिडेट करते हैं। 0 to less than 1% nuclear stain, then ER negative. 1 to 100% is ER positive, but 1 to 10% is ER low positive, and more than 10% is ER positive. But ESCO और NCCN whatever pathological जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें लो पॉजिटिव एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव हमको मेंशन करना है रिपोर्ट में। ठीक है। तो बायोमार्कर कन्वर्जन, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले पेशेंट प्री NACT ER पॉजिटिव था, पोस्ट NACT ER नेगेटिव हो गया फाइनल हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में। तो हम यूजुअली अभी करंट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करते कि पेशेंट पहले से ER पॉजिटिव है तो हम उसको ऑपरेशन के बाद फिर से उसका ER PR HER2 स्टेटस करवाते हैं, पर अब इस स्टडी से करवाना चाहिए। क्यों? अगर किसी पेशेंट का पहले से पॉजिटिव था, उसके बाद वो ट्रिपल नेगेटिव स्टेटस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका सर्वाइवल वर्स है। तो बायोमार्कर कन्वर्जन ऑफ ER PR और HER2 आफ्टर NACT in the patient without PCR has been shown a prognostic significance. So this is one of the important point जो मेरे को इतनी पढ़ाई पे पता चला, पहले नहीं पता था। Yeah man, this is extremely news. I had no idea. इसके बाद एक कुछ है ना, ER PR can change but HER2 can never change, ऐसा सुना ना मैंने। It can never become negative. Once it is positive, it's positive always. ER पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है मगर HER2 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुना मैंने। नहीं कैन चेंज। ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है कि TNBC नहीं हो सकता क्योंकि एक रिसेप्टर आप लूज कर सकते हो, बट TNBC में कोई रिसेप्टर होता ही नहीं है, तो आप लूज क्या करोगे? हाँ ठीक है। तो ER एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, तो नेगेटिव ER और प्रोजेस्टेरॉन इज लेस देन 1% मानना है, एंड ऐसा नहीं है कि 1 to 100% के बीच में पॉजिटिव होता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। और ER पॉजिटिव है बट ER नेगेटिव है पर प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव है, तो ऐसा केस बहुत रेयर होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा केस आया है कि प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव है और ER नेगेटिव है, तो फर्स्ट चीज हमारे को करना है कि हमको रिपीट टेस्टिंग करानी है। ठीक है। अगर रिपीट टेस्टिंग में भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तब कुछ स्टडीज बोल रही है कि देयर कैन बी अ प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिस्पांस टू टेंडो थेरेपी दैट इज इंडिपेंडेंट टू ER, and that I have confirmed with NCCN also says the same. तो ये लैंसेट का एक स्टडी था जिसने ये बोला है कि अगर ER नेगेटिव है और PR पॉजिटिव है तो भी हम एंडोक्राइन थेरेपी दे सकते हैं, बट ये बहुत रेयर कंडीशन है। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो हमको पहले उसको रिपीट कराना है। तो only 1 to 2% of breast cancer categorized as ER negative and PR positive, and it is very difficult, तो हमको उसको फिर से रीटेस्टिंग करना है। अब आया नेक्स्ट HER2 टेस्टिंग।
HER2 टेस्टिंग इज वैलिडेटेड बाय IHC। तो हम लोगों के यहाँ पहले IHC होता है, अमेरिका में पहले फिश होता है, फिश के बाद IHC होता है, थोड़ा उल्टा है। तो हम लोग पहले IHC करते हैं, उसमें 1+, 2+, 3+ बताते हैं, 2+ को वी विल गो फॉर फिश। तो अब 1+, 2+, 3+ है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्कमफ्रेंशियल से मान लो यहाँ पे 10 सेल्स है, मैं ब्राउन कलर से होता है वैसे तो ये स्टेनिंग, मैं ब्लैक कलर से करती हूँ, ठीक है। अगर पूरा ऐसे थिक सर्कमफ्रेंस पूरा इन्वॉल्व है और वो मोर देन 10% सेल्स है तो वो IHC 3 पॉजिटिव है। सर्कमफरेंशियल मेम्ब्रेन स्टेनिंग कंप्लीट, तो C फॉर सर्कमफरेंशियल, C फॉर कंप्लीट और मोर देन 10% सेल्स है तो उसको IHC 3 पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। नो स्टेनिंग, नो मेम्ब्रेन, लेस देन 10% ऑफ ट्यूमर सेल्स तो IHC 0, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। इनकम्प्लीट, अब इसमें ऐसा है, इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन स्टेनिंग और फेंट है, ऐसे मोर देन 10% ट्यूमर सेल्स है तो वो IHC 1+ है, ठीक है। इसके बीच की जो 2 कैटेगरी आएगी वो सब IHC 2 में आएगी जो इक्विवोकल है। इसलिए क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, इसलिए हमको इसको सब क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। उसका रीजन क्या है कि मान लो एक सेल है, ये वाला ही सेल है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग पूरा ऐसे बना हुआ है पर इस साइड इनकम्प्लीट है ना, तो ये लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है तो इतना अच्छा, फिर भी इसको उनको IHC 2 ही देना पड़ रहा है, 2+ ही देना पड़ रहा है, बिकॉज ये कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा है। और वही ऐसा एक पेशेंट है फेंट वाला, ठीक है, जिसमें पूरा अच्छे से उसको भी वो 2+ ही करेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड वेराइटी आ रहा है। तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंशियल पूरा स्टेनिंग अच्छे से हो रहा है, मोर देन 10% सेल्स में IHC 3+ है। इनकम्प्लीट लेस मोर देन 10% में स्टेनिंग है, फेंटली मोर देन 10% सेल्स में तो ये 1+ है। तो अब 2+ आया तो हम लोग करते हैं फिश। फिश में HER2 and Sep17 रेशियो देखते हैं, मोर देन 2, लेस देन 2, ठीक है। मोर देन 2 आया तो हम लोग उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। अपने पास ये वाला यूजली वैलिड नहीं होता, बिकॉज हम लोग पहले ही IHC करा लेते हैं। तो हम लोग IHC करा लेते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, देखो HER2 Sep17 मोर देन 2 है तो हमारा फिश पॉजिटिव आएगा मोर देन 4 सिग्नल सेल्स में, ठीक है। अगर ये लेस देन 2 है तो हम HER2 कॉपी नंबर देखेंगे, मोर देन 6 सिग्नल सेल्स है तो वो पॉजिटिव है, और 4 to 6 वाला इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा NCCN गाइडलाइंस है। अभी NCCN ने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली है, मान लो हम HER2 कराते हैं, ठीक है, HER2 कराया, वो 2+ या 1+ आया तो वो 2+ + 1+ लो HER2 पॉजिटिव बताना है रिपोर्ट में, ठीक है। उसको नेगेटिव नहीं बोलना है, 0 को नेगेटिव बोलना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ट्रांसटुजुमैब डोराक्सी, कल इसने अवनीत ने एक ड्रग पढ़ाई थी ना कॉन्जुगेट वाली, ट्रांसटुजुमैब डेरोस्टिकैन। हाँ, तो ये ट्रांसटुजुमैब डोराक्सीटैन है ना, ये वाली जो ड्रग है, ये ड्रग लो पॉजिटिव में भी इफेक्टिव आई है। एक डेस्टिनी ट्रायल करके है, उसने बोला है कि ये ट्रांसटुजुमैब डोराक्सीटैन जो है ये लो HER2 पॉजिटिव में भी इफेक्टिव है। तो इन फ्यूचर अगर हमारे पेशेंट में ट्रांसटुजुमैब काम नहीं कर पा रही है एंड पेशेंट फर्स्ट लाइन थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो सेकेंड लाइन थेरेपी में हम HER2 लो पॉजिटिव है
तो उस पेशेंट में हम ट्रांसटूसुमाब डुरोक्सिटन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आया HER2 नेगेटिव। तो मेन हमको क्वेश्चन में जो था उसमें आप पहले बताओगे कि क्या क्या मार्कर्स है, उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इजी वे में। ER पॉजिटिव है, एल्डर्ड स्टोन, PGR स्टोन है, फिर HER2 पॉजिटिव है, इसको हम इस वाले चार्ट से बस इतना बनाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद हम उनके इम्प्लीकेशंस बताएंगे। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन है कि वो तो हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए हम ER-PR HER2 कराते हैं। सेकेंड हम कराते हैं उसका प्रोग्नोसिस करने के लिए, जो हम उसको कीमो देना है नहीं देना है, ऑन्कोटाइप DX और उसमें यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, वो कीमोथेरेपी कौन से पेशेंट में कौन सा देना है, विच कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स टू विच। तो HER2 नेगेटिव को अलग कीमोथेरेपी प्रेफर करते हैं, HER2 पॉजिटिव को अलग कीमोथेरेपी प्रेफर करते हैं। तो ये सब स्लाइड्स डालने का इशू ये था कि ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डूइंग दीज ऑल रिसेप्टर्स। तो HER2 नेगेटिव पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें हम डोज टेंस एंड डॉक्सिरूबिसिन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड एंड पैक्लिटेक्सेल एवरी 2 वीक्स एंड वीकली पैक्लिटेक्सेल भी दे सकते हैं। तो हम लोग तो यही देते हैं, AC प्लस पैक्लिटेक्सेल। ठीक है, और ओलापैरिब इफ जर्मलाइन म्यूटेशन है तो वो फर्स्ट लाइन रेजिमेन में ही आ गया है। डॉक्सीटेक्सेल प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड कैन आल्सो बी यूज्ड। तो HER2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट अलग से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कवर कर रही हूँ, इतना पूरा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो HER2 नेगेटिव में हम TC देते हैं, डोज टेंस AC देते हैं, 2 वीकली पैक्लिटेक्सेल या वीकली पैक्लिटेक्सेल दे सकते हैं। BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है तो ओलापैरिब देंगे। हाई रिस्क TNBC पेशेंट है तो हम उसमें प्री ऑपरेटिव पेम्ब्रोलिजुमैब, कार्बोप्लेटिन और पैक्लिटेक्सेल भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड TNBC एंड रेसिडुअल डिसीज आफ्टर प्री ऑपरेटिव थेरेपी तब तो हम लोग कैप्सिटाबिन देते ही हैं। ठीक है, इनके डोजेज हैं, ये तो ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद HER2 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, हम लोग तो HER2 पॉजिटिव में भी AC प्लस पैक्लिटेक्सेल दे देते हैं, पर NCCN वो ड्रग रिकमेंड नहीं करता है फॉर फर्स्ट लाइन HER2 पॉजिटिव। वो क्या बोल रहा है, या तो पैक्लिटेक्सेल ट्रांसटूसुमैब दो या डोसीटेक्सेल कार्बोप्लेटिन विद ट्रांसटूसुमैब दो, या फिर TCHP ट्रांसटूसुमैब प्लस परटूसुमैब दो। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम इतने डिटेल स्टडी में कि अगर कोई पेशेंट HER2 पॉजिटिव है प्लस नोड भी पॉजिटिव है तो उसमें ट्रांसटूसुमैब प्लस परटूसुमैब इज प्रेफर्ड ओवर ट्रांसटूसुमैब अलोन। ठीक है, HER2 पॉजिटिव में तो हम ट्रांसटूसुमैब दे ही रहे, पर अगर नोड पॉजिटिव है तो हमें डुअल ब्लॉकर देना चाहिए। And if no residual disease after preoperative therapy and no preoperative therapy, then complete 1 year HER2 therapy with trastuzumab category 1. But if residual disease is present after preoperative therapy, then adotrastuzumab entamacine is the category 1. If patient afford नहीं कर पा रहा है या उसने कुछ टॉक्सिसिटी हो गई तो ट्रांसटूसुमैब प्लस परटू प्लस माइनस परटूसुमैब। ठीक है, और इफ नोड पॉजिटिव है तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, इनिशियल स्टेजिंग के टाइम पे ट्रांसटूसुमैब प्लस परटूसुमैब कैटेगरी 1 है। ये जो अभी एम्टेसिन का बोला, दैट इज फ्रॉम कैथरीन ट्रायल एंड दैट adotrastuzumab emtasin and one more trial is there, no? What is the other one, this dual blocker, उसका नाम नहीं आ रहा। Okay, anyways, this adotrastuzumab emtasin should be given if there is a residual disease, has come from Catherine trial. क्लियोपैट्रा है मुझे लगता है, क्लियोपैट्रा एफिनिटी है ना, एफिनिटी। हाँ कुछ तो अभी याद आए तो बताए। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट है, ये मुझे नहीं पता था कि अगर नोड पॉजिटिव पेशेंट है तो हमें डुअल ब्लॉकेड यूज करना चाहिए।
ठीक है, तो अब अगर सिर्फ HER2, अगर ये पूरा ISC का एक क्वेश्चन आता है तब तो नहीं, पर सिर्फ HER2 पे क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ उस पे नहीं छोड़ सकते. देन वी हैव टू राइट डुअल कलर, डुअल इन situ हाइब्रिडाइजेशन. ये HER2 की कॉपीज के साथ साथ इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं. सिल्वरिश होता है, क्रोमोजेनिक रेडिश होता है. तो ये इसका क्या फायदा है कि तुमने फिश की देखा होगा, पूरे में ब्लैक ब्लैक होता है, उसके बाद कहीं रेड और कहीं ग्रीन होता है. इसमें क्या फायदा है? इसमें ये पेशेंट जो सेल की मॉर्फोलॉजी है ना, वो भी साथ में देख पाते हैं अलोंग विद द कलर डिफरेंस. तो अगर किसी ट्यूमर में कैंसर इन्वेजिव कंपोनेंट है और नॉन इन्वेजिव कंपोनेंट है, तो इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव कंपोनेंट में हमको जो HER2 देखना है वो इन्वेजिव कंपोनेंट में देखना है, ना कि नॉन इन्वेजिव कंपोनेंट. या फिर नॉर्मल कैंसर सेल में ही सिर्फ देखना है, ना कि नॉन कैंसर सेल्स में. तो उससे हिसाब से ये जो पुराना फिश क्राइटेरिया है वो मॉर्फोलॉजी नहीं बता पाता. तो वो चाहे इन्वेजिव कंपोनेंट है चाहे नॉन इन्वेजिव कंपोनेंट है, कहीं पे भी HER2 पॉजिटिव होगा तो बता देगा. पर ये इसका फायदा है कि ये मॉर्फोलॉजी भी बता पाएगा. तो एक्सीलेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी कॉन्कॉर्डेंस विद द फिश है इसका. ये FDA ने 2020 में अप्रूव किया है. तो इसके क्या फायदे हैं? फास्टर टर्न अराउंड टाइम है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, एबिलिटी टू archive and review slides later if required, and ease evaluating slides with conjunction with morphology. क्योंकि इसमें हमें इन्वेजिव कंपोनेंट का ही देखना है, ना कि PCIS और ऐसे लेगा. अब KI67 NCCN और ESCO दोनों ही सपोर्ट नहीं करते. ESMO बोलता है कि हम न्यू एडजुवेंट सेटिंग में KI67 करा सकते हैं. वो भी उन पेशेंट्स में फायदा करेगा जो ER/PR पॉजिटिव होंगे पर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है और ऐसा ट्यूमर है जिसको हम अपफ्रंट सर्जरी के लिए ले रहे हैं. तो अगर उसका KI67 मोर देन 15 to 20% रहता है तो ऐसे पेशेंट को हम NACT प्रेफर कर सकते हैं. तो एक स्टडी आई है जो ये बोलती है कि आफ्टर एवरीबॉडी इज कंफर्म स्टेबल विथ हिंदी ना, कोई कुछ बोल. Should I speak totally in English? No problem. Okay. ठीक है. अगर 15 to 20% है तो हम दे सकते हैं. तो करना क्या है कि हम 2 साइकिल्स कीमो देंगे. 2 साइकिल्स कीमो के बाद इफ KI67 फॉलिंग ट्रेंड में है तो हम पूरा न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी जैसे नॉर्मल फॉलो करते हैं वो करेंगे. और इफ KI67 फॉलिंग ट्रेंड में नहीं है तो हम उस पेशेंट को वेट नहीं करेंगे, हम उसको ऑपरेट कर देंगे. ठीक है. इसका ट्रायल मैं देख के बताऊंगी, मैं ऐड करना भूल गई हूँ, पर ये कुछ एस्मो वाला ये सपोर्ट कर रहा है. अडैप्ट ट्रायल है इस ट्रायल का नाम, अडैप्ट के बेसिस पे. कब करने का KI67 एक बार वापस बता सकते हैं क्या? हाँ, क्या यूज है KI67 का, एक बार वापस बताना प्लीज. KI67 उन पेशेंट्स में काम आएगा जिन पेशेंट्स में ER/PR पॉजिटिव पेशेंट है, स्मॉल साइज ट्यूमर है, जिनको हम अपफ्रंट सर्जरी के लिए ले रहे हैं. ठीक है. इफ उन हम KI67 कराते हैं and it is showing is percentage more than 15 to 20%. KI67 बताता क्या है? proliferative index है. अलग पेशेंट हाई proliferative. ठीक है. तो हाई प्रोलिफरेटिव पेशेंट्स का कीमोथेरेपी का रिस्पांस होने का चांस ज्यादा है. ठीक है. तो अगर किसी का KI67 15 to 20% ज्यादा है तो उन पेशेंट को हम ER/PR पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव होने के बाद भी हम उसको कीमोथेरेपी अपफ्रंट दे सकते हैं.
और वो 2 साइकिल कीमो के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट का Ki-67 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर Ki-67 फॉलिंग ट्रेंड में है, देन तो जो हम HER2 पॉजिटिव और TNBC में जैसे फुल कीमोथेरेपी कंप्लीट करते हैं, ऐसे पूरा कीमोथेरेपी कंप्लीट करके उसको ऑपरेट करेंगे। बट इफ वो Ki-67 फॉलिंग ट्रेंड में नहीं है और पेशेंट की ऑपरेबल डिसीज है, तो हम वेट नहीं करेंगे पूरा 8 साइकिल कंप्लीट करने का, हम उसको ऑपरेट कर देंगे। तो ये अवनीत बोल रही है कि एडाप्ट ट्रायल है, मुझे ट्रायल का नाम याद नहीं था। ये लेस देन 2 में ही है कि स्टेज 1 2 में? स्टेज 1 एंड 2 मेन जो हम अपफ्रंट को ले रहे हैं ना, उन अपफ्रंट वाले पेशेंट्स के लिए। तो वाई Ki-67 अभी तक यूज नहीं हुआ है क्योंकि इसकी एनालिटिकल वैलिडिटी नहीं आएगी, कैसे टेस्ट करना है, पर्टिकुलर प्रॉपर गाइडलाइंस, कट ऑफ स्कोरिंग्स, कंसेंसस नहीं आया है, कट ऑफ वैल्यूज पूरी डिफाइन नहीं हुई है, और बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो टेस्ट करती हैं एक पर्टिकुलर मार्कर को, तो उनकी भी रिलायबिलिटी और यूटिलिटी फिक्स नहीं हुई है। तो ISC प्रोटोकॉल जो हैं बहुत वेरिएबल हैं, कोई कंपनी कुछ कर रही है, कोई कंपनी कुछ करे, इट्स नॉट फिक्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी एक रीसेंट FDA अप्रूवल ड्रग हुई है एबिमासाइक्लिब। Abemaciclib is CDK4/6 inhibitor in combination with endocrine therapy should be used in the adjuvant treatment option of ER/PR HER2 negative patient whose Ki-67 is more than 20%. तो अभी तो ESMO बोला न्यू एडजुवेंट, तो हमने पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट को ऑपरेट कर दिया। अब पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद भी उसका Ki-67 मोर देन 20% है, तो हमें उस पेशेंट्स को एडजुवेंट ट्रीटमेंट में एंडोक्राइन के साथ अबीमासाइक्लिब देना चाहिए। तो अभी और तरीके आएंगे। तो दिस इज द रोल ऑफ Ki-67 इन जनरल कंसेंसस। CDK4/6 पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये बताओगी फ्यूचर में। Ki-67 has a validity for determination prognosis of the early breast cancer. Its utility has been demonstrated only for very small intended use to eliminate the need of multi-gene expression assays. बोलो कि oncotype DX को क्या Ki-67 रिप्लेस कर पाएगा? मुश्किल ही है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, in the range of 5 to 30% of ISC multi-gene expression assay oncotype DX is recommended. तो बल्कि ISC अगर ऐसा आता है 5 to 30% आता है Ki-67, तो हमें oncotype DX करना चाहिए, ये बताने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्कर है PDL। So in total 3 things we can say, no, Ki-67 का यूटिलिटी में। एक वो ER/PR जो अपफ्रंट सर्जरी करना है या NACT करना है, और दूसरा हाँ वो एक ये जो बताया अर्ली स्टेज luminal A। Then दूसरा ये जो second one was what? Second one was Abemaciclib. Abemaciclib, and third is this no actually 2 ही है ना, 2 ही चीज़ है। हाँ, oncotype DX का करना है या नहीं 5 to 30%, 3 चीज इन टोटल। ठीक है, ठीक है। अब आया PDL1। PDL1 is predictive biomarker for immunotherapy and only validated biomarker with the TNBC metastatic। तो PDL1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ PD1 स्टेनिंग सेल्स, ट्यूमर, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, जहां जहां स्टेनिंग आ रही है वो सेल्स लेना है, अपॉन टोटल फ्रैक्शन ऑफ वायबल ट्यूमर सेल्स इनटू 100। तो इसकी कट ऑफ वैल्यू होती है मोर देन 10%। तो CPS स्कोर अगर मोर देन 10% होता है तो हम पेम्ब्रोलिजुमैब दे सकते हैं इन मेटास्टेटिक एंड टोटली एडवांस्ड न्यू एडजुवेंट TNBC। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर्स ISC इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो ऐसा दिखता है प्रोपोर्शन स्कोर, ऐसा दिखता है इंटेंसिटी स्कोर। ठीक है, तो गुड होता है 75% चांस ऑफ बेनिफिट ऑफ द थेरेपी जब ये स्कोर 7 to 8 आता है।
तो अगर सिर्फ अल्ट्रेट स्कोर या फिर इसमें क्वेश्चन आता है फिर तो ये प्रोपोर्शन स्कोर और इंटेंसिटी स्कोर भी लिखना पड़ सकता है। सेकेंड है ये सब ER-PR हड्डू करा के हम मॉलिक्यूलर सब टाइप में डिवाइड करते हैं। इसको हम इंट्रिंसिक सब टाइप बोलते हैं। ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B, HER2 enriched, basal like। तो ER-PR positive, HER2 rare is ल्यूमिनल A। बाद में फोन करती हूँ। अरे मुझे नहीं पता भाई, पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है अभी रुक जाओ, मेरा क्लास चल रहा है। ठीक है, P53 म्यूटेशन, Ki67 एंड DNA कॉपी नंबर ये सब कम रहेगा तो ल्यूमिनल A होगा बिकॉज मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन सब टाइप इज स्टिल अ क्वेश्चन, तो ये पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। ल्यूमिनल B में पॉजिटिव वेरिएबल और HER2 कैन बी पॉजिटिव पर ये इंटरमीडिएट टू हाई ग्रेड रहेगा। P50 म्यूटेशन इन सब में रेयर है, कॉमन HER2 एनरिचड बेसल लाइक में। Ki67 हाई इन बेसल लाइक एंड HER2 एनरिच्ड। DNA कॉपी नंबर डिप्लॉयड होता है ल्यूमिनल A में, बाकी सब में एन्यूप्लॉयड रहेगा। MRA एक्सप्रेशन सिग्नेचर हाई ER मिलेगा एंड लो प्रोलिफरेशन मिलेगा इन ल्यूमिनल A। हाई HER2 एम्प्लीकॉन एंड हाई प्रोलिफरेशन मिलेगा बेसल लाइक एंड एनरिच्ड। लो ER क्लस्टर्स एंड हाई प्रोलिफरेशन मिलेगा ल्यूमिनल B में। तो ये डिप्लॉयड वाला, बाकी सब एन्यूप्लॉयड है, ऐसे याद कर लो। ER क्लस्टर्स ज्यादा मिलेगा, इसमें लो ER क्लस्टर्स मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये पता लगा लिया कि ल्यूमिनल A है ल्यूमिनल B है। ये पता क्यों लगाया? हमको ट्रीटमेंट देखना है बिकॉज ल्यूमिनल A विल रिस्पॉन्ड टू एंडोक्राइन थेरेपी एंड इट्स रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी इज वेरिएबल, prognosis is good. In luminal B, it will be response to endocrine therapy and but variable response to chemotherapy, but more response than luminal A. And its prognosis is not good as luminal A. ठीक है, HER2 में P53 म्यूटेशन कॉमन रहेगा। हाई ग्रेड इन्फेरेटिव डक्टर कार्सिनोमा होते हैं, ट्रांसटुजुमैब को रिस्पॉन्ड करेंगे एंड गुड एंथ्रासाइक्लिन बेस्ड कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे एंड पुअर प्रोग्नोसिस रहेगा। तो ये जो बेसल लाइक ट्रिपल नेगेटिव रहेंगे, एंथ्रासाइक्लिन को नहीं, प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, जनरली पुअर प्रोग्नोसिस एंड नो रिस्पॉन्स टू एंडोक्राइन एंड ट्रांसटुजुमैब। तो ये था मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन एंड ये थे उनके इम्प्लीकेशंस। ठीक है, so high risk and low risk. High risk required chemotherapy, low risk no chemotherapy. Clinically indeterminate groups, lymph node positive, ER HER2 negative tumor, इन सब की प्रोग्नोसिस के लिए मल्टीजीन प्रोग्नोस्टिक एसेज आए। तो ल्यूमिनल A एंडोक्राइन थेरेपी अलोन, ल्यूमिनल B HER2 नेगेटिव एंडोक्राइन प्लस माइनस साइटोटॉक्सिक, ल्यूमिनल B HER2 पॉजिटिव तो साइटोटॉक्सिक प्लस HER2 प्लस एंडोक्राइन। HER2 पॉजिटिव है नॉन ल्यूमिनल देन साइटोटॉक्सिक एंड एंटी HER2। ट्रिपल नेगेटिव ओनली साइटोटॉक्सिक्स। तो स्पेशल हिस्टोलॉजिकल एंडोक्राइन रिस्पॉन्सिव में एंडोक्राइन थेरेपी, एंडोक्राइन नॉन रिस्पॉन्सिव साइटोटॉक्सिक्स। So, who are the candidates of preoperative systemic therapy according to NCCN? Inoperable breast cancer, invasive inflammatory breast cancer, bulky noted CN2, CN3, CT4. In selective patient, preoperative systemic chemotherapy is preferred. तो हमको पता ही है HER2 positive and TNBC में हम more than 2 centimeter और 1 centimeter को भी NSCT देते हैं। ठीक है, large primary tumor relative breast size who desires breast conservation and the node positive patient.
तो एक क्वेश्चन जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर एंड मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग, इसकी डेफिनेशन मुझे ज्यादा समझी नहीं है, फिर मैंने लिख दिया। जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंगल और कंबाइंड जीन एक्सप्रेशन अल्टरेशन with validated specificity in terms of diagnosis, prognosis, prediction and therapeutic response. ठीक है, या तो सिंगल होगा या कंबाइंड जीन एक्सप्रेशन होगा, जिससे हमारी डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन और थेरेपेटिक रिस्पॉन्स चेंज हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग is a method of testing looks at each person cancer tumor, मतलब एवरी जो पर्सनाइल पेशेंट केयर होती है ना, वैसे टाइप का पर्सन्स कैंसर ट्यूमर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेगा और उनके यूनिक बायोमार्कर टेस्ट करेगा एंड क्रिएटेड टारगेटेड थेरेपीज दैट आर वर्क बेटर फॉर द स्पेसिफिक कैंसर ट्यूमर प्रोफाइल। तो मेन मोटा मोटा है कि पर्सनलाइज्ड केयर में मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग होगा, उसमें पर्सन वर्ड जरूर लिख देना, और जो जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर है ये जनरलाइज्ड है। ठीक है, तो हम क्यों कर रहे हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग? टू क्लासिफाई द ट्यूमर टाइप्स, recognize hereditary implications BRCA1 mutation, to identify therapeutic agents, HER2 पॉजिटिव में अलग है, ERPR पॉजिटिव में अलग है, हम उसकी प्रोग्नोसिस करना चाहते हैं और हम बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रिडिक्ट करे या हमारा रिस्पॉन्स मॉनिटर करे, और हमको अननेसेसरी ट्रीटमेंट अवॉइड करना है ऑल कैंसर पेशेंट्स का। ये 6 पॉइंटर्स है जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का पर्पस बता रहे हैं। So many gene signature is identified which will predict response to specific therapies. The assays of those genes gives risk to scores and recurrence-free survival rate. And these assays are done on mainly ER, PR positive, HER2 negative, and N0. ऐसे पेशेंट्स का हम मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग और जीन एसेस करेंगे। तो क्या क्या जीन ऐसे है? तो एक ऑन्कोटाइप DX एक अकेला है जिसके पास प्रेडिक्टिव एंड प्रोग्नोसिस दोनों वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके 2 ट्रायल्स आए हैं, एक टेलरएक्स, एक RX पॉन्डर। तो टेलरएक्स N0 लोग के लिए है, RX पॉन्डर N पॉजिटिव लोग के लिए है। ठीक है, एंड दीज आर दोनों RCTs रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, इसलिए ऑन्कोटाइप DX कैटेगरी 1 एविडेंस है फॉर डूइंग ये ऐसे जीन एक्सप्रेशन ऐसे। ठीक है, तो ये चाहे नोट पॉजिटिव हो चाहे नोट नेगेटिव हो, ये प्रिफर्ड है इन पोस्ट मेनोपॉजल लेवल 1। प्री मेनोपॉजल में ये लोग बोलता है कि कीमोथेरेपी देने से पेशेंट्स को ज्यादा फायदा होता है, इसलिए प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स को हमको ऑन्कोटाइप DX व्हेन नोट पॉजिटिव है तो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन। इसके अलावा तो एक क्वेश्चन ये जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स पे ही आया हुआ है, तो उसमें आपको ऑन्कोटाइप DX, मेमाप्रिंट, प्रोसिग्ना, एंडोप्रेडिक्ट, PCI ये सब लिखने हैं, उसमें स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं लिखना है। ठीक है, तो मेमाप्रिंट जो रहता है 17 जीन ऐसे है, DNA माइक्रो एरे टेक्निक से होता है, सब देखो RT-PCR से हो रहा है। ठीक है, ये DNA माइक्रो एरे है और अभी RT-PCR से भी होने लगा है। इसमें N0 लेस देन 5 सेंटीमीटर, स्टेज 1, स्टेज 2 लेस देन 61 ईयर, इसका भी 1A एविडेंस है। ठीक है, और इसका भी 1A एविडेंस है। तो ऑन्कोटाइप DX का एक्चुअली 1A है इन बोथ प्री मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल, इसलिए हम यूजुअली ये प्रेफर करते हैं। अब ये NCCN का टेबल चार्ट है। NCCN रिकरेंस रिस्क निकालने के लिए बोलता है, तो अगर कोई पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है, ठीक है, PN0 या PN13, तो उसमें हमको सिर्फ लेस देन 26 एंड मोर देन 26 देखना है। मोर देन 26 रहेगा तो हम
पेशेंट को कीमो देंगे, लेस देन 26 रहेगा तो हम कीमो अवॉइड करेंगे। पर अगर प्री मेनोपॉजल है और PN0 है, ठीक है, तो हम मोर देन 26 को तो कीमो देंगे ही देंगे। 16 को 25 को हम फिर से उसके बाकी पैरामीटर्स को चेक करेंगे और ओवेरियन सप्रेशंस को प्रमोट करेंगे अलोंग विद द कीमोथेरेपी, या फिर सिर्फ टेमोक्सिफेन एंड AI। उसमें सर्जन के पास राइट है कि वो पेशेंट के लिए क्या बेटर चूज करता है, वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। और प्री मेनोपॉजल फीमेल को अगर देना है कि नहीं, ये अभी क्वेश्चन है, तो इसको भी मत ही पढ़ो तो बेटर है। इसके बाद इतना सब ये सब नहीं पढ़ना चाहती हूँ, फिर भी जिसको मन करे वो पढ़ ले। मल्टी जीन ऐसे ऑन्कोटाइप DX, मेमाप्रिंट, PAM50, BCI, एंडोप्रेडिक्ट, ISC स्कोर एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये सब मल्टी जीन ऐसे पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो RT-PCR 21 जीन्स होता है, 5 कंट्रोल होता है, 16 कैंसर रिलेटेड जीन्स होता है। कैंसर रिलेटेड जीन्स में ER, HER2, proliferative जीन एंड इन्वेजिव ग्रुप जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका रिकरेंस स्कोर 0 to 100 होता है। तो हमें ये वाला जो 18 वाला है ये RX पॉन्डर का है, ठीक है। तो हमको वो ना देखते हुए लेस देन 26, मोर देन 26 जो NCCN में दिया है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर ट्यूमर है तो हम ऑन्कोटाइप DX करवाया, उसमें लो रिस्क ऐसा एक फ्लो चार्ट बना देंगे, लो रिकरेंस स्कोर, इंटरमीडिएट और हाई रिकरेंस स्कोर। अगर नहीं करवाया तो एंडोक्राइन थेरेपी अलोन देंगे, करवाया तो हम ये सब करवाएंगे। और उसका अगर रिकरेंस स्कोर लेस देन 10 आया तो कोई कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंडोक्राइन थेरेपी दो। और अगर हमने 11 to 25 आया तो हमको देखना है प्री मीनोपॉजल है कि पोस्ट मीनोपॉजल है। तो पोस्ट मीनोपॉजल है तो कीमोथेरेपी मत दो, एंडोक्राइन दे दो। पर अगर प्री मीनोपॉजल है तो कीमोथेरेपी कंसीडर कर सकते हो। एंड मोर देन 26 है तो आइदर ऑफ द कुछ भी हो, पेशेंट को कीमोथेरेपी फॉलोड बाय एंडोक्राइन थेरेपी देना है एंड ओवेरियन सप्रेशन ऐड करो इफ प्री मीनोपॉजल पेशेंट है तो, ठीक है। अरे just asking, what do you guys do in your institute for ovarian suppression? Are you all doing oophorectomies or what? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ट्यूमर बोर्ड में बोलते हैं तब वो सोचते हैं। हम लोग वो देते हैं गोजरेल, क्या गोजरेल देते हैं? GnRH ना? एक पेशेंट को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन चाहिए था तो उसके लिए ट्यूमर बोर्ड में गए थे कि मैडम इसको कुछ दे दो। तो अरे हाँ, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन तो अलग बात। हाँ, that what you oocyte and all that. एक्चुअली ओवेरियन सप्रेशन भी क्या करा रहा है, वही करा रहा है ना। नहीं, ओवेरियन सप्रेशन I meant, are you doing surgical or are you doing medical? Because we end up doing oophorectomies here, so that's why I asked if any of you are giving medical. She is Suppression is ulta, no. Fertility preservation is different. No, in premenopausal unmarried females, you will avoid oophorectomy. You will give these goserelin. Later on, when they are cured, unmarried female इधर कोई नहीं आ रहा है. I mean, yeah. She is telling the same. Some they are telling. Yeah. बहुत young female आती है. ठीक है. अभी पिछले वाला आपने जो दिखाया वो कहाँ से है टेबल? ये किसी RX पॉन्डर या इसके किसी से है। NCCN में तो 15 है ना मिनिमम, like 15, 16 to 25 है। नहीं, यही है NCCN में भाई। पीछे लो। ये देखो 15 है ना इधर। उसमें क्या है? 10 है। ये कंफ्यूजन रहता है। ये उसका है डॉक्टर राकेश, अपडेट अप टू डेट का। अप टू डेट तो गलत बता सकता है। तो इसको आप 15 के हिसाब से चेंज कर लो भाई। क्या? मैमा प्रिंट, माइक्रो किसका है कंस्ट्रक्शन?
हाँ, किसी का अनम्यूट था, कोई बात। मैमा प्रिंट इज अ माइक्रो एरे बेस्ड फ्रेश टिश्यू से लेना है, 70 जीन एक्सप्रेशन है। एक इनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सेल साइकिल, इन्वेजन, मेटास्टेसिस, प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल एंड सर्कुलेशन, एक्सट्रावर्जेशन और एडाप्टेशन ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, एनर्जेनेसिस। इसके 70 जीन्स लिए इसने। ठीक है, यूएस एफडीए है, मोर देन 61 इयर्स ऑफ एज, स्टेज 1 एंड 2 लिम्फ नोड नेगेटिव, 1 to 3 नोड पॉजिटिव डिसीज में हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड सर्टिफाइज लो रिस्क एंड हाई रिस्क। इसका ट्रायल है माइंडैक ट्रायल, माइक्रो एरे नोड नेगेटिव 1 to 3 नोड पॉजिटिव में अवॉइड कीमोथेरेपी। तो मैमा प्रिंट टेस्ट हैज बीन वैलिडेटेड इन द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, और एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव स्टडी है मिंडैक ट्रायल। इसके कारण ऑन्कोटाइप डीएक्स के बाद ये भी एक अच्छा टेस्ट है। बाकी सब टेस्ट सिर्फ नाम के लिए है। पैम 50 के नाम में 50 है, 50 जीन्स है और सेल साइकिल रेगुलेटिंग एंड प्रोलिफरेटिव जीन है। ये इंट्रिंसिक टाइप क्लासिफिकेशन रिकरेंस स्कोर देता है, सब में यही लिख देना। ठीक है, और सबके स्कोर याद करने बैठेंगे तो काम का स्कोर भूल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मेंशन है, देख लो जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो। Knowing the women with high risk and low risk recurrence more than 5 years after diagnosis may be help the doctor to figure out कि हमको इसको हार्मोनल थेरेपी कंटिन्यू करना है कि बंद कर देना है, टैमॉक्सिफेन 10 साल के लिए देना है कि नहीं देना है। तो ये सब चीजें भी हम इससे रूल आउट कर सकते हैं। तो if doctor knew that the women had low risk of dysthymia, then 5 साल ही बहुत है, पर अगर हाई रिस्क है तो भाई 10 साल देना है। The score is calculated coefficient, Cox model, proliferation score, gross tumor size, 1 to 100 स्केल में से इतना सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, थेरोस ब्रेस्ट कैंसर इंडेक्स होता है, ये हॉक्स B13 एंड IRR इंटरल्यूकिन 17 ब्रेस्ट BR का पता नहीं क्या फुल। ठीक है, इंटरल्यूकिन 17 रिसेप्टर बी एंड होम्योडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, इसके 2 जीन का रेशो लेता है ये ब्रेस्ट कैंसर इंडेक्स। और ब्रेस्ट कैंसर इंडेक्स तो यहाँ पे भी पढ़ा था। तो ये ब्रेस्ट कैंसर इंडेक्स हाई और लो। ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रांस एटम एंड आइडियल ट्रायल्स आया है, जिसने बताया है कि अगर ब्रेस्ट इंडेक्स हाई रहेगा तो हमको 10 साल देना चाहिए। जो एटम ट्रायल आया है वो इसके हिसाब से ही है। The patient with hormone receptor positive, HER2 negative and BCI high is 5 to 10. तो ऐसे पेशेंट्स को हमको लेट डिस्टेंट रिकरेंस होगा। तो ER और PR पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है ना, इसका रिकरेंस 10 साल के बाद भी आ जाता है, पर TNBC का जो रिकरेंस है वो लेस देन 5 इयर्स में ही आ जाता है। तो अगर TNBC में 5 साल तक रिकरेंस नहीं आया तो हम मान के चलते हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर हो गया है। बट ER/PR पॉजिटिव का ऐसा नहीं है, इसका रिकरेंस 10 साल बाद भी आ जाता है। तो अगर BCI इंडेक्स हाई है तो उस पेशेंट को हम 10 साल टैमॉक्सिफेन देंगे, पर अगर BCI इंडेक्स कम है तो हम उसको 5 साल दे के भी चला सकते हैं काम। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, IHC तो हम कर ही रहे हैं, 4 का मतलब है KI67, ER/PR तो हम करा ही रहे हैं, HER2 करा ही रहे हैं, KI67 भी कराएंगे तो वो IHC4 हो जाएगा। Next generation sequencing can detect the gene mutations from all amount of DNA, fine needle assay, circulating tumor DNA, सब टाइप से हम NGS कर सकते हैं। NGS used to characterize genomic alteration, copy number changes, insertion, deletion, mutation to facilitate the sequencing of greater depth of base pair. ठीक है, spatial and temporal intra-tumor heterogeneity होता है।
ठीक है, तो ऑन्कोटाइप DX ने 4 रैंडमाइज फेज 3 ट्रायल्स को यूज किया है, दैट इज स्वॉग, adjuvant tamoxifen or anastrozole NACBP28 और ECOF 2197 study including axillary lymph node positive and HER2 positive। तो मेन ट्रायल जो याद रखना है वो टेलरएक्स है और आरएक्सपॉन्डर है। टेलरएक्स नोड नेगेटिव के लिए, आरएक्सपॉन्डर नोड पॉजिटिव के लिए, ये दोनों रैंडमाइज ट्रायल्स है, इसलिए ऑन्कोटाइप DX कैटेगरी 1 है और मैमाप्रिंट कैटेगरी 1 है ड्यू टू माइंडेक्ट स्टडी। उसको मोर देन 61 ईयर वाले पेशेंट में करना है। और BCI में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको एंडोक्राइन थेरेपी लॉन्ग टर्म के लिए देनी है कि शॉर्ट टर्म के लिए देनी है, और उसका रेशियो भी 5:10 और लेस देन 5 है, तो याद कर सकते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर एल्गोरिदम ऑफ एंडोक्राइन थेरेपी ये एस्को गाइडलाइन से लिया हुआ है। तो फ्यूचर में सिर्फ हार्मोन एंडोक्राइन थेरेपी पे अगर क्वेश्चन आता है या ER/PR पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बताते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। तो ये CDK4/6 वाला जो क्वेश्चन था वो इससे थोड़ा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बताऊं कि रहने दूं? क्या हुआ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बता दो बता दो, ठीक है। तो एरोमेटेज इनहिबिटर हम दे रहे हैं एडजुवेंट, तो हम देंगे। उसके बाद भी पेशेंट को कैसे देंगे, अगर उसका ER स्टेटस पॉजिटिव है एंड अपने को CDK4/6 इनहिबिटर कब देना था, जब हमने पढ़ा कि Ki-67 मोर देन 20% रहेगा। तो फल्वास्ट्रेंट के साथ CDK4/6 इनहिबिटर एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द एडजुवेंट थेरेपी दिया। क्या क्या जीनोमिक टेस्टिंग है, PIK3, ESR1, AKT, PTEN, या फिर हमको कोई म्यूटेशन ही नहीं मिला। कोई म्यूटेशन नहीं मिला तो फल्वास्ट्रेंट प्लस एवरोलिमस कंबाइन करो या फिर कीमोथेरेपी दो। AKT1 और PTEN म्यूटेशन मिला तो फल्वास्ट्रेंट प्लस कैपीवासर्टेनिब। ESR1 म्यूटेशन तो एल्कास्ट्रेंट, E फॉर ESR, E फॉर एल्कास्ट्रेंट। ठीक है, ये सेकेंड लाइन है सब। फर्स्ट लाइन सबका फल्वास्ट्रेंट एंड CDK4 से अबीमासाइक्लिब जो पढ़ा था, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब हम ये सब म्यूटेशंस कराएंगे। तो ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, सेकेंड लाइन तक ही बहुत है, थर्ड लाइन हमारे बस का, पेशेंट मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये रिस्पॉन्ड एरोमेटेज इनहिबिटर नहीं देना है पेशेंट, देना है पेशेंट को, पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल ऐसे टाइप से डिसाइड करता है ना, तो एरोमेटेज इनहिबिटर नहीं दिया हुआ ऐसा लिखा ना, पहले डायमंड बना रखा है, पहले दिया है कि नहीं दिया उसके बेस पे बता रहा है। तो फर्स्ट लाइन तो कैसे हुआ, एरोमेटेज इनहिबिटर ही फर्स्ट लाइन नहीं हो गया फिर? पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट ही है सब एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो एरोमेटेज इनहिबिटर अगर नहीं दिया है तो एरोमेटेज इनहिबिटर दो विद CDK4/6 इनहिबिटर एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। ठीक है, फिर उसके बाद एरोमेटेज इनहिबिटर देने के बाद PIC3K, ECR, ECTN सब सेम ही तो करवाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबको फल्वास्ट्रेंट देना है। अगर आपने पहले एरोमेटेज इनहिबिटर ही दिया है तो अगर एरोमेटेज इनहिबिटर पहले दे चुके हो तो फल्वास्ट्रेंट दोगे। अगर फल्वास्ट्रेंट नहीं दिया था, एरोमेटेज इनहिबिटर दिया है, तो सब में इधर फल्वास्ट्रेंट है, ये डिफरेंस है बस। ठीक है, तो ESR1 एल्कास्ट्रेंट, AKT1 कैपीवासर्टेनिब, कोई टारगेटेबल म्यूटेशन नहीं है तो एवरोलिमस एंड फल्वास्ट्रेंट देना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। पक गया, मैं खुद ही पक गई। कीमोथेरेपी नहीं देंगे इनको कभी भी? थैंक्स कीमो नहीं देना इनको कुछ? ACVC वो मेटास्टेटिक है ना, हार्मोन पॉजिटिव। हाँ